In the last lecture, we were discussing conditional operator, and we had left on this slide. So I was telling you that if I have used this ternary operator, I can use in this way also. That maybe you might be going through the assignment in lab. There, one question was there whether the um, character entered by the user is digit or a letter that is in uppercase or a letter that is in lowercase or it is a special symbol. So that can be used with if statement also, that we have discussed in last lecture. But the range that you have to give the ASCII codes. Yes, so you can also do it with the conditional operator like this, that whatever character is entered by the user, you can put that in the range a greater than equal to 65, and this character a should be less than equal to 90. Then it will be then the letter will be in the uppercase, or you can you can return some value 1 or 0, or you can print anything, right? So that we had discussed yesterday also. There are few points that you have to consider when you are um, using the conditional operator. First is, it is not necessary that the conditional operators should be used in arithmetic statements, right? So first I am taking input from the user in the first example. So I am taking the condition I equal to 1. Then you can print something, else you can print something. Okay, so here we can directly use printf also. Okay, instead of like in last example, we were we were returning some value 1 or 0, but we can also write printf statements, and that can print anything depending on the condition. Then second example is character a is equal to z. So z is a character. Char a is a variable that you are assigning the value to that a variable, and then you can also assign, you can also write this conditional operator or the ternary operator inside printf, like we used to write %d a plus b. Here you can write, you can return anything, and that can be printed. So here you can see that in this example we are writing here a greater than equal to a. So this a is a character, and this a variable is the uh, is z actually. So when they are equal, then it will return a variable, the variable itself. Otherwise it should return the exclamation sign, the sky value. Yes, and then you can print with the help of this printf. Next example is that these conditional operators or the ternary operator, they can be in they can be nested also. Means we are having one conditional operator inside another conditional operator. So you might have done the greatest out of three numbers or the smallest amongst three number with the help of conditional operator or with the help of ternary operator. So that can be done. So a greater than b, if this is 2, then a will be now compared with c, and then you can return 3 or 4 or some other value, or you can write printf statement also here, right? And this b greater than c is in the else part of a greater than b. After that I have a greater than b. Then if a is greater than b, then g equal to a, else g equal to b. So now in this statement you can see that there are two assignment operators. Yes, now for this assignment, now if you compile or if you compile this statement, it will give you error because of this assignment operator. So it will give you error that L value is required. What is L value? That is in the left hand side. So if I'm considering this equal to sign, this is the assignment operator. Now, yeah, the compiler will think that b can be assigned to all of this value, but this is not the left hand side value, because we consider on the left hand side we consider a variable on the left hand side. Yes, and this is not the variable. So the solution to this is that you put this g equal to b inside the bracket like this.
like here you can see. Yes, whenever you are using assignment operator in conditional or ternary operator, then you have to be careful if it is asking for the L value. When it is doing on the assignment operator, then you can put these brackets. Fine. So we have conditional operator as well as if else. So they work, their work is same, but there is a limitation of conditional operator over if else. That is that you can, the limitation is that after this X is question mark or after the colon, only one C statement can occur. Now, yesterday we had discussed if else. So I had told you that uh, what the if many statements are depending on the if condition, then you have set of statements, you can write those set of statements inside the brackets. Yes, similarly for the else also. Now this cannot happen in conditional operator. So there is only one C statement that can occur in the conditional operator, and in practice rarely is this the requirement. Therefore in serious C programming, conditional operator are not as frequently used as the if else. Yes, but if you are asked to perform something with the conditional operator, then you can, of course you have to then. Yes, but generally you can use if else statement. So let's go through the summary. There are three ways of taking decision in a program. So whenever you are given some problem statement and you have to create some program out of that, so you can choose amongst three things. First is if else statement, second is conditional operator, and third way is to use the switch statement. So switch statement we will be covering today. The default scope of if statement is only the next statement. So to execute more than one statement, they must be written in a pair of places. तो if के बाद में अगर आपको एक ही statement देनी है, then you can write that statement inside the parenthesis or without parenthesis also. Yeah. But if some set of statements are dependent on the if statement, then on the if condition, then you have to put all those set of statements inside the parenthesis. An if block need not always be associated with an else block. However, an else block is always associated with an if statement. जब आप कोई program you are writing, now if बाद में you are writing some condition, now अब उसके बाद में else block optional होता है, आप चाहे उसे लिखे या ना लिखे. But if you are using some else block, कहीं पर भी आप else block यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उससे पहले कोई ना कोई if जरूर होना चाहिए. राइट, इफ ब्लॉक, इफ स्टेटमेंट आपकी, इफ कंडीशन आपकी ऊपर कोई फुलफिल हो रही है, ओनली देन यू आर यूजिंग दिस एल्स ब्लॉक. ठीक है, आप ये करके भी देखिएगा किसी एक प्रोग्राम में, सिर्फ एल्स यूज करके देख लो, इट विल गिव यू एरर दैट if is not present. ठीक है, so then you have to write if prior to the else block. If the outcome of an if else ladder is only one of two answers, then the ladder should be replaced either with an else if clause or by the logical operators. कल हमने एग्जांपल्स करी थी, if के अंदर if लिखा था, nested if बनाया, नो मैंने एक ही एग्जांपल आपको दो फॉर्म्स ऑफ if में दिखाई थी, where you can combine two conditions with the logical operators. So both ways you can use. And or are binary operators, whereas not is a unary operator that you already know. In C, every test expression is evaluated in terms of zero and non-zero values. A zero value is considered to be false and a non-zero value is considered to be true. If के अंदर आपके पास में अगर condition false होती है, it means it is returning zero. If it is zero, only then the condition is false. But if it is non-zero value, any non-zero value is considered to be true. Even जैसे if के अंदर आपने -5 लिख दिया, so that will also be considered to be true because it is non-zero. Then assignment statements used with conditional operators must be enclosed within a pair of parentheses. ये हमने जो last एक example करी है
that if you are using some assignment operator inside the conditional operator, this will give you an error that L value is required. So there the solution is that you use parentheses, right? Okay, so let's now switch to switch case. Yes. Okay, so after if else and conditional operator, we have switch case statement. So what is it used for? That we'll see. The if else statement allows you to execute a block code among many alternatives. ठीक है, तो आपके पास में depending on the condition you can take as many if and as many else as possible, है ना, जो भी आपने लेना है according to your scenario. If you are checking on the value of a single variable in if else statement, it is better to use switch statement. Okay? And that is why, because it is working on the value of a single variable, so it is faster than the if statement. ठीक है, तो इसमें हम mainly क्या करते हैं, when you are given so many options and you have to choose only one option out of many, then you can use this switch statement. ठीक है, और जितने भी आपके केसेस, जितने भी आपके ऑप्शंस रहेंगे उनको हम यहाँ पर केस बोलते हैं. ठीक है, so you have many options but you have to choose only one amongst them, then you put those options as the cases and then you can go through the, now we can go through the syntax of switch. ये हमारे पास में syntax है switch का. Now let's see what is this. I have to write this switch. This is switch keyword और ये small में है, that you have to be careful. Okay, साथ में, इसके साथ में ही without giving a space, you have to put this bracket, and inside this bracket, now inside this bracket will be the option that you are choosing, है ना. आप जब एक बार एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो एक ऑप्शन पर्टिकुलर देंगे, है ना, the choice that you are making, right? So that you are giving it here. But inside this bracket, now you can see this bracket, and this is the starting bracket and this is the closing bracket नीचे. ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जो जो पॉसिबल थे, जो यूजर चूज कर सकता था. ठीक है, तो उसको मैंने आपको अभी बताया कि जो जो ऑप्शंस हमारे पास में रहेंगे, आई एम कॉलिंग देम एज केस. क्या उन ऑप्शंस को मैं केस का नाम दे देती हूँ, इसका नाम केस है, राइट. तो मैंने क्या लिया, केस. नाउ इट इज अगेन स्मॉल, इट इज सेंसिटिव, सो यू हैव टू बी केयरफुल. CASC इज स्मॉल. ये जो कांस्टेंट 1 है, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद में हमने एक कोलन लगाना है. जैसे आप एज फॉलोज में कोलन लगाते हो ना, एज इंग्लिश में जब लिखते हो कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज, तो ये जो कोलन लगता है, सो दिस यू हैव टू पुट, राइट. आफ्टर दैट, here now in this line the code to be executed जहां लिखा है, here you can so many few statements, maybe single statement or multiple statements, they are dependent on this option that is chosen. Yes, after that, now यहाँ कुछ printf हो सकता है, आप यहाँ a is equal to b plus c कुछ कर सकते हैं, ये ना. ठीक है, तो इसमें कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं. but after these statements you have to write break. again this break is in small letters. ठीक है, तो ब्रेक के बाद में एक सेमीकोलन आएगा. सो दिस इज द सिनेरियो. सो ये जो आपका ये कोड रहेगा केस से लेके, ये पूरा केस से ब्रेक, दिस विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, यस. अब ये क्या करेगा, कैसे करेगा, दैट आई विल टेल यू. ऐसे जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, सेम यू विल बी क्रिएटिंग द सेकंड ऑप्शन. अगेन यू विल राइट केस, फिर आपने स्पेस दिया और साथ में आपका जो सेकंड आपकी ऑप्शन है दैट यू आर राइटिंग. ठीक है, देन यू आर पुटिंग कोलन, और फिर यहाँ पर आपके पास में the set of statements can be there, कोई printf है, कुछ execution आप करा रहे हैं वो है, and then further you have to write this break. ठीक है, और इसके बाद में कोई थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, you have so many options that those options you can again write in the form of cases. ऐसे ही case constant 3, case constant 4 and so on, जितनी भी आपकी options हैं. ठीक है, अब ऑप्शन जब खत्म हो जाती हैं तो लास्ट में मैं एक डिफॉल्ट नाम की ऑप्शन देती हूँ. ठीक है,
So again, this default is in small letters, that you have to be careful. Default और साथ में अब मैंने कोई केस नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं दी, और साथ में कोलन लगा दिया डिफॉल्ट के बाद, ठीक है, और फिर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये करता क्या है, काम क्या करता है, अब ये सुनो। सो आई एम राइटिंग दिस स्विच, व्हाट, ये सब मेन के अंदर होगा, जो आप मेन प्रोग्राम बनाते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio, अभी एग्जांपल्स हम करेंगे उसमें सब लिखा होगा। ये सिर्फ इसका सिंटैक्स है। अब आप पहले ये देखिए, स्टॉप रेजिंग हैंड्स, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, व्हाट इज दिस, आप कुछ भी यहाँ पर चूज करते हैं, सो आई गिव यू सो मेनी ऑप्शंस, तो आपको एक ऑप्शन चूज करनी है, ठीक है। ये जो n है, दैट विल बी नाउ कंपेयर्ड विद कांस्टेंट 1, या ये n कांस्टेंट 1 के इक्वल है तो फिर ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं। नहीं है, अच्छा नहीं है कांस्टेंट 1 के इक्वल, तो चलो हम सेकंड देखते हैं, तो ये कांस्टेंट 2 के इक्वल है, देन दीज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी फॉलोड। तो ये जो आपने ऑप्शंस दी हैं, उनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपकी चॉइस से मिलती जुलती होगी, यस, उस चॉइस के हिसाब से आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी फॉलोड, ठीक है। कभी ये हो सकता है, नेक्स्ट चॉइस आपने दी तो मे बी इट इज मैच्ड विद 2। अगर आपके इन ऑप्शंस में से यूजर की कोई भी, ये n जो दिया है ना, n कोई भी मैच नहीं करता है, तो फिर हमने एक डिफॉल्ट केस रखा हुआ है लास्ट में, जो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये डिफॉल्ट का मतलब क्या, कि अगर आपको इसमें कोई प्रिंट कराना है, यू कैन प्रिंट समथिंग के ऑप्शंस आर नॉट, द चॉइस इज नॉट मैचिंग विद द ऑप्शन, यहाँ कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डिफॉल्ट वाली जो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है हमारे पास भी, ये भी ऑप्शनल है, ये आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज बिना डिफॉल्ट के भी चलेगा, ठीक है। तो नाउ आई एम रिपीटिंग कि ये क्या काम करेगा। सबसे पहले आई एम रिपीटिंग कि स्विच जो केस है, अब तो एक लास्ट जो हमने इफ और कंडीशनल ऑपरेटर किया है, उसमें तो पूरी कंडीशन, एक ही कंडीशन पे सब डिपेंडेंट था, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वर एग्जीक्यूटेड। Now in this switch case, what I have so many options, but you can choose only one option. This this choice will be now compared with the options, और अगर ये किसी ऑप्शन के साथ में ट्रू हो जाता है या इक्वल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाली सेट ऑफ इक्वेशंस विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रेक जो है, ब्रेक क्या करेगा, जो ब्रेक है आपके पास में, ब्रेक आप जैसे ये n जो है, आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, उससे और भी क्लैरिटी हो जाएगी। सो जो n है, फॉर एग्जांपल इससे मैच कर जाता है, यहाँ पर जैसे 4-5 कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, दे विल बी एग्जीक्यूटेड, तो उसके बाद में मुझे बाकी ऑप्शंस को नहीं चेक करना है, आई नीड नॉट टू चेक अदर ऑप्शंस, यस। सो आई विल एग्जीक्यूट दिस ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का मतलब क्या, कि आप इस कोड से, इस लूप से अब यहाँ इस ब्रैकेट से बाहर आ जाइए, और फिर इसके बाद में अगर मेन के अंदर और कोई स्टेटमेंट्स हैं, कुछ printf है, एंड ऑफ द प्रोग्राम, देयर आर सम अदर स्टेटमेंट्स दैट कैन गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो स्विच का जो काम रहेगा, वो आपका इस ब्रैकेट से, ऊपर ब्रैकेट से शुरू होके ये नीचे की जो ब्रैकेट है यहाँ तक रहेगा। Now we will see its flow chart and then we'll come to its examples, ठीक है। फ्लो चार्ट में आपके पास में एक सिंगल एक्सप्रेशन जाता है एज द इनपुट, ऐसे ये जो n है ना, ये आप यूजर से इनपुट करवाएंगे जो स्विच में है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इट विल नाउ गेट मैच्ड विद द केस। पहले हमारे पास में क्या था, ये देखिए यहाँ पर क्या था, केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, तो ये आपके इधर क्या होगा, मैचिंग होगी। यहाँ ये क्या है, if this single expression equals to case constant, is it equal? अगर yes है तो फिर ये वाला, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इस कांस्टेंट 1 के नीचे, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ब्रेक होके ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये सारा क्या कर रहा है, अगर ये पहला वाला मैच हो गया है ऑप्शन, तो ये क्या हुआ, कोड ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो गया और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस स्विच केस से, ठीक है। अगर ये नहीं मैच हुआ तो सेकंड ऑप्शन हम चेक करेंगे, क्या यूजर की चॉइस सेकंड ऑप्शन से मिल रही है। अगर नहीं है, देन इट विल गो फॉर थर्ड ऑप्शन,
अगर यस है तो देन दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, और ब्रेक के होने के बाद ये सारा इससे बाहर आ जाएगा स्विच से, ठीक है। अगर लेट अस सपोज कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करती है, देन व्हाट विल यू डू? जहां नो केसेस आए जा रहे हैं, कोई भी आपकी चॉइस मैच नहीं कर रही है ऑप्शन से, देन दिस डिफॉल्ट कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड, है ना। जिसमें फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिख दिया कि नो, नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग, नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग विद द चॉइस, तो आप इसमें यहाँ डिफॉल्ट कोड में लिख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट अगेन इट विल कम आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल हम बीच में कर लेते हैं, इससे पहले आई कैन टेक योर questions. Any questions? People had raised their hands. Or first we can go through the example and I can ask you again. Okay. Okay. So I have a program to create a simple calculator. So if I ask you to create a program for the calculator, तो अब उसमें क्या क्या आपके पास में options होते हैं? सबसे पहले एक operator होता है, yes, आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, और फिर आप दो नंबर्स को भी एंटर कराते हो, ठीक है। अब now let's go through the program. So I have written hash include stdio.h int main. Char operator, what is this? This is the variable name, ठीक है। इसमें आप क्या यूजर से एंटर करवाएंगे? एक ऑपरेटर, कि आप एडिशन करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, ठीक है। And for two numbers, I have taken first number and second number as the variable name. मैंने दो numbers लिए हैं, first number and second number. They are of double data type. Double data type के हैं वो. Then I am printing enter an operator. आप plus minus multiplication division कुछ भी आप enter करते हैं तो वो क्या आएगा? That will be in the form of a character. ठीक है? Because it is a special symbol ना, that will be entered by the user, so that is a character. Now you are asking for two operands, तो आप scanf करके अपने दो numbers भी ले सकते हैं। आपको पता है यहाँ LF क्यों लिखा है? Because I have taken double. यहाँ %LF क्यों लिखा है? That is format specifier for double. ठीक है। ओके, अब आप मेन के अंदर ही अब आप यहाँ आ जाइए कि कैसे स्विच केस यूज करते हैं। देखिए, तो मैंने क्या लगाया, स्विच स्मॉल में है, कोई स्पेस नहीं देनी, आप इसके साथ में ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, ठीक है। साथ में क्या है, अंदर इसके क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या, ऑपरेटर विल बी द चॉइस एंड दिस इज इनपुट बाय द यूजर। आप इसको देख सकते हो दैट इट इज टेकन एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। ये ऑपरेटर वेरिएबल में स्टोर हो गया, जो भी उसने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में से उसने जो भी चूज किया। अब इसमें क्या हो रहा है, नाउ स्विच केस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आपके पास में चॉइसेस हैं, कौन सी चॉइस देनी है आपने, प्लस की देनी है, माइनस की देनी है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन की देनी है ना। आपका जो प्लस है वो एक क्या है, दैट इज अ करेक्टर, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस करेक्टर इन द सिंगल कोट्स। जो करेक्टर होता है, इफ आई हैव टू राइट वन करेक्टर, आई विल बी राइटिंग दैट करेक्टर इन सिंगल कोट, ठीक है। सो आई, क्योंकि मेरे पास में फर्स्ट ऑप्शन है तो इसके पहले मैं क्या लिखूंगी, केस, और फिर मैंने ये क्या लिखा, प्लस, और वो भी सिंगल कोट्स में। देन आई टोल्ड यू दैट दैट विल बी फॉलोड बाय अ कोलन, ठीक है। कोलन के बाद में आपकी कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और सिंगल स्टेटमेंट जो भी रहेगा, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट .1, ये मैं बाद में बताती हूँ। printf this %lf plus %lf is equal to %lf फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और लास्ट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो मैंने दो नंबर्स को ऐड करके उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। .1 जो है वो इसलिए हम लिखते हैं अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ठीक है, आप चेक कर लेना। .2 लिखेंगे तो वो 2 डेसिमल प्लेस तक आ जाएगा, ठीक है। ये सारा काम यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया है और केस 1, राइट, दैट वाज योर फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में क्या लगाया, ब्रेक लगाया है, और ब्रेक क्या करेगा, आपको इस लूप से, स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेकंड केस बनाया माइनस के, अगर यूजर माइनस इनपुट करता है देन आई हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इन दिस लाइन, यहाँ पर इसको प्रिंट किया गया है और साथ में ब्रेक लगाना है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन जो मल्टीप्लीकेशन की है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर वो आ गया है।
सिमिलरली आई हैव टेकन फोर्थ ऑप्शन जिसमें डिवीजन है, राइट। और लास्ट में क्या था, डिफॉल्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट में मैंने क्या लिखा, प्रिंटफ एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। और ये स्विच को यहाँ मैंने बंद किया है यहाँ पर, और फिर साथ में रिटर्न 0, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास में, यूजर कोई भी आपके पास में ऑपरेटर इनपुट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मल्टीप्लाई इनपुट कर देती हूँ और मैंने 2 नंबर इस स्टेप में इनपुट करवा दिए स्कैनफ से, यस। तो नाउ इन द स्विच केस व्हाट विल हैपन, वो मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन इज द ऑपरेटर्स, नाउ मल्टीप्लिकेशन विल कम हियर, इट विल गेट मैच्ड विद प्लस। इज इट सेम, ये प्लस है, नो, ये इस केस में नहीं जाएगा। इज इट माइनस, नो इट इज नॉट माइनस, सो इस केस में नहीं जाएगा। इज इट मल्टीप्लिकेशन, yes it is multiplication, so it will execute only this printf, and उसको printf डिस्प्ले करने के बाद ब्रेक है, ब्रेक क्या करेगा, ये जो ब्रेक क्या है, नीचे इसको लेकर आएगा और यहाँ पर इसमें इस लूप से, इस ब्लॉक से इसको बाहर ले आएगा और फिर ये बंद हो जाएगा प्रोग्राम, इट विल एंड, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज मैंने कुछ अनयूजुअल सा ऑपरेटर एंटर कर दिया, मैंने एक्सक्लेमेशन साइन एंटर कर दिया, तो दैट एक्सक्लेमेशन साइन विल गेट यहाँ आ जाएगा, इट विल गेट नाउ compared with plus. Is it plus, no. Is it minus, no it is not minus. Is it multiplication, no it is not multiplication. Is it division, no it is not division. फिर क्या आएगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो है वो जब कोई भी ऊपर केस नहीं एग्जीक्यूट होता, कोई ऑप्शन मैच नहीं होता, तो डिफॉल्ट जो होता है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, printf एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, जो मैंने एक्सक्लेमेशन साइन दिया था उसके उसमें क्या आ जाएगा, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, ये मैसेज मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेम एग्जांपल, कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ये वो जो मैंने बहुत बड़े नंबर लिए थे उसकी जगह ये छोटे छोटे नंबर लेके नंबर 1 नंबर 2 ऐसे इसको थोड़ा साफ साफ करके लिखा है, ठीक है। नाउ यू आस्क क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड। Please raise your hand if you have any question. Otherwise, we will move forward. Any questions are there? Please raise your hand. Okay. ठीक है। ये जो आपके पास में स्विच केस है, इसका प्रोग्राम आपको अपने आप से करके देखना है, ठीक है, आफ्टर द लेक्चर। सो नाउ आपके पास में वी हैव सम कंस्ट्रेंट्स कि ये जो स्विच केस है कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो सकता है और कहाँ कहाँ एरर हो सकती है और कोई चीज कहाँ नहीं यूज हो सकती, ठीक है। सो दैट विल स्टडी। तो इन फॉर दिस स्विच आई कैन राइट हेयर सम वेरिएबल नेम या फिर कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकती हूँ। एक्सप्रेशन आपको पता है 2 + 1 - 5 ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन भी इधर अगर मैं लिखती हूँ तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी नाउ मैच्ड विद द लेबल 1 लेबल 2 लेबल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। स्विच केस में आपके पास में कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। आपका स्विच केस में जो भी आप ऑप्शन देते हैं, चॉइस देते हैं, वो किस में होती है, राउंड ब्रैकेट में होती है। और साथ में ये स्विच केस जो है वो इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा एंड इस कर्ली ब्रैकेट तक खत्म होगा। इसके अंदर आप कोई भी चॉइसेस अपने ऑप्शंस दे सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू those choices or the options you can write different statements, and at the end of those statements you have to write break, ठीक है। Okay, so after that I have 2 rules that can be implied on the switch case. So those are int id is equal to 3. So let's go through these examples. Int id is equal to 3, switch में मैंने id डाल दिया, case 1 यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखी, then proceeding by break, case 2 then default। अब आप इसमें देख सकते हैं कि केस 2 जो है वो 2 बार लिखा है और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटफ है ना। तो स्विच केस में आप कोई भी 2 केसेस सेम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट
टेक टू केसेस एज सेम। आपके पास में वो सब जितने भी आप केसेस बनाएंगे उनका ये जो लेबल होता है 1 2 या ऑपरेटर जैसे आपने पिछली एग्जांपल में बनाया, दे मस्ट बी यूनिक। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज केस लेबल्स मस्ट एंड विद कोलन। आप जो भी कोई लेबल लिखते हैं, जैसे केस 1 लिखा, इसके बाद में आपको कोलन डालना है, सेमी कोलन नहीं डालना, डॉट नहीं डालना, यू हैव टू राइट कोलन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो फॉलो होंगी। ओके, सो रूल 3 इज केस लेबल्स मस्ट हैव कॉन्स्टेंट्स और कांस्टेंट एक्सप्रेशन। आप यहाँ पर केस 1+1 भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ऊपर लिखा ना केस 1 केस 2, वहां पर आप ये भी लिख सकते हैं 1+1, दैट विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, केस 67, दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट विल बी सॉल्व्ड। और करेक्टर भी ले सकते हैं, करेक्टर ए ले लिया, जैसे आपने ऑपरेटर्स लिए थे, प्लस लिया हमने, माइनस लिया, मल्टीप्लीकेशन लिया। ठीक है, तो दीज आर दी अलाउड एग्जाम्पल्स। बट आप वेरिएबल को ऐसे नहीं कर सकते कि a+b मैंने कर दिया वेरिएबल का नाम लिख, ऐसे नहीं ना, इधर आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे 67 इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, है ना, या फिर उस उन्हीं कांस्टेंट्स का कोई एक्सप्रेशन ले सकते हैं, बट वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन नहीं ले सकते। जैसे ये देखो, ये गलत है, नीचे जो लिखा है नंबर 1 + नंबर 2, दिस इज रॉन्ग, राइट। Similarly, variable, this is variable name, case variable name, no, this is not correct. After that, you have case label must be of integral type, integer और character. आपका अगर कोई एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, so that will should be of, that must be of integer data type. 10 हो गया, 20 + 20, वो ये नहीं होना चाहिए 10.12, वो जो आप केस में लेबल लगा रहे हैं वो फ्लोट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स हैं हमारे पास में स्विच केस के। ठीक है, देखो इस स्विच केस के अंदर हमने, हमारे पास में केस 1 है, केस 2 डिफॉल्ट। तो अब इसमें क्या एरर है, इसने तो एक तो केस 2 भी 2 बार बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरी केस मस्ट बी यूनिक। ऐसे ही डिफॉल्ट केस भी आप एक ले सकते हो, ये नहीं है कि डिफॉल्ट भी आप 2 2 3 3 बना रहे हो, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डिफॉल्ट केस भी आपको, ये जो डिफॉल्ट है उसके आगे हम हालांकि केस नहीं लगाते, दिस डिफॉल्ट केस शुड आल्सो बी 1। ओके, ओके, देन आई हैव डिफॉल्ट लेबल इज ऑप्शनल। अब इस केस में देखो, स्विच केस में केस 1 है, केस 2 है, केस 2 है, हालांकि यहाँ केस 2 नहीं होना चाहिए, ये तो रॉन्ग है, ये भी आपके पास में यूनिक होता है, बट इसमें डिफॉल्ट केस नहीं है। तो डिफॉल्ट केस जो होता है वो भी किसी भी स्विच केस में ऑप्शनल होता है, आप चाहे डिफॉल्ट केस रखिए या ना रखिए। जैसे आप कैलकुलेटर वाले एग्जांपल में हमने किया था दैट एरर ऑपरेटर यू हैव चोजन इज रॉन्ग, है ना, एक्सक्लेमेशन साइन मैंने एग्जांपल दिया। तो आप उस वो ऑप्शनल मैसेज है यूजर के लिए कि आप उसको डिफॉल्ट लेबल रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते। देन यू हैव डिफॉल्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द स्विच। ये जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट आपको लास्ट में रखना है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, आप उसको फर्स्ट प्लेस पर भी रख सकते हैं। ठीक है, मेनली काम क्या होता है, जैसे ये रोल है, इट विल मैच विद ऑल दी ऑप्शंस, इट विल गेट मैच विद ऑल दी ऑप्शंस। ठीक है, ये नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ऊपर से नीचे ये मैच करेगा। तो डिफॉल्ट केस कैन बी एनीवेयर इन द स्विच। Then we have break statement takes control out of the switch. जो break statement होती है, ये इसका काम क्या है कि ये आपका जो फ्लो हो रहा है, फ्लो आपके प्रोग्राम का है, वो इस ब्रैकेट से बाहर लेकर आता है। ठीक है, इस फ्लो या उसको हम कंट्रोल कह देते हैं आपके प्रोग्राम का। तो वो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, स्विच केस से आपको बाहर लेके आने में हेल्प करती है, द मेन फंक्शन, टू द मेन फंक्शन। देन two or more cases may share one break statement. अब देखिए, now in this example, ये वाली एग्जाम्पल में क्या है, case A, case capital A, printf alphabet A break, case B, case capital B, printf
अल्फाबेट बी। तो ये जो ऊपर दो केसेस हैं वो सेम ब्रेक स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही केस बी जो है वो भी सेम ब्रेक स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी ऐसे मल्टीपल केसेस हैं वो सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट शेयर कर सकते हैं। ये जो एक एग्जांपल रहेगी आपकी बहुत ही, एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन, लेट मी शेयर होल स्क्रीन। सो ये जो आपकी इसमें एग्जांपल दी है, so you can write here case A, yes, sorry, so this is case A separated, okay, again this case A, capital A, and then you can put a colon और फिर उसमें आप printf कर सकते हैं, आपके भी इसमें अल्फाबेट A, ठीक है। जब आपके बहुत ही इसमें मे बी इसमें आएगा वो प्रोग्राम भी, और फिर आप ब्रेक लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी आपके सेंटेंस में या कहीं यूजर कुछ इनपुट कर रहा है, इधर इट इज स्मॉल ए और कैपिटल ए, यू कैन प्रिंट दैट इट इज अल्फाबेट ए और ए स्मॉल ए, ठीक है। चाहे ये वाला भी ऑप्शन पॉसिबल है, ये वाला भी ऑप्शन, इन दोनों केसेस में आपके पास में ये वाली प्रिंटफ यहाँ पर फॉलो हो जाएगी, ठीक है। इसकी और एग्जांपल्स आएंगे, आई विल शो यू। The next rule is that nesting switch is allowed. कल हमने किया था nested if, मतलब if के अंदर एक और if स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम nested switch का मतलब क्या है, switch के अंदर एक और switch केस है, ठीक है। यहाँ देखिए इस केस में क्या है, switch alpha, I have few cases, this case and this case, but in the B case I have again switch alpha, so this is, ये जो internal switch case है, this is called nested switch, ठीक है। ये सिनेरियो nested switch का है कि एक switch case के अंदर हमारे पास में एक और switch case आ गया। Then relational operators are not allowed in switch statement. We have relational operators, greater than, equal to, less than, equal to, equal to, equal to, they are not allowed in the switch case, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू दे सकते हैं, फ्लोट भी नहीं होना चाहिए, कोई वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए, ना उसमें कोई रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे, फाइन, ओके। देन मैक्रो आइडेंटिफायर्स आर नॉट अलाउड, ओके। मैक्रोज क्या होते हैं, जब हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जब पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि ऊपर हैश डिफाइन करके हम पाई की वैल्यू को लिख सकते हैं, ना, कि अगर मुझे पाई की वैल्यू को वहां रिपीट करना है, तो मैं एक ये इसको हम मैक्रोज बोलते हैं, जो मेन से भी पहले लिखे जाते हैं, बट आफ्टर हैश इंक्लूड वी यूज्ड टू राइट। तो ये जो है, ये मैक्रोज जो हैं, ये स्विच केस में एज अ केस का काम नहीं करेंगी, इट विल गिव यू एन एरर, as preprocessor will replace occurrence of max by constant value, therefore it is not allowed. इसको करके देखेगा, okay. So now this is very important program, now you can see this program, this was actually I was talking about. तो ये आपके पास में एक प्रोग्राम है, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है that check whether a character entered by the user is vowel or consonant, ठीक है। तो यूजर एक करेक्टर इनपुट करता है, यस, यूजर एक करेक्टर इनपुट करता है, यू हैव टू चेक कि वो जो करेक्टर इनपुट कर रहा है वेदर इट इज अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। अब हमें पता है कि वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जो भी रहा वो कॉन्सोनेंट होता है। तो वी कैन यूज स्विच केस हेयर, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो भी यूजर एंटर कर रहा है करेक्टर, कि क्या वो इस रेंज में है, मतलब कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। आप वो इफ में लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, whatever character is entered, ch character is entered by the user, I am checking that with capital A and capital Z इस रेंज में है, या फिर और, नाउ इन ये इन बिटवीन क्या है, और इट इज इन बिटवीन रेंज ऑफ स्मॉल a टू z, है ना। अगर इस रेंज में है ओनली, देन आई विल चेक वेदर इट इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। मेरे को चेक कैसे करना है,
let us suppose the character is in this range, इसके अंदर ही है वो, then I will check capital A, E, I, O, U. केसेस मैंने बना दिए, केस A कैपिटल A, केस कैपिटल E, केस कैपिटल I, O, U, ये सब केसेस है ना, और साथ में स्मॉल केस भी हो सकता है, A, E, I, O, U, वो सब मैंने लिख लिया. Then at the end I can write %C is vowel और डिफॉल्ट में %C is consonant. ठीक है, अब देखो ये हो क्या रहा है. मैंने बताया था कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो आपको इस स्विच केस में से बाहर लेकर आएगी, क्या इस स्विच केस में से. देन इन केसेस में कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी. इसका मतलब क्या कि जो भी इसके बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने कैपिटल E इनपुट कर दिया, ठीक है, तो पहले इफ कंडीशन में चेक हुआ इट इज ट्रू एंड साथ में नाउ इसके साथ में मैच हो रहा है. इसके बाद अब इसके यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो ब्रेक नहीं है, सो इट विल बी फॉलोड बाय ऑल दीज स्टेटमेंट्स, और लास्ट में भी जो भी लिखा है एवरीथिंग विल बी फॉलोड अंटिल ब्रेक कम्स. ठीक है, तो ब्रेक आने से पहले सारा कुछ ये फॉलो होगा ऊपर जो भी है, और तो फिर क्या है एंड में आपने क्या लिखा है %C, जो भी आपका परसेंट मतलब कैपिटल E इज अ वॉवल. ठीक है, तो time is about to get over. If you have any questions, please ask me. You are welcome for the questions. Please ask. Raise your hands. Any questions? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है कुछ? हाँ पूछिए. Yes, Piyush. Ma'am, actually I have joined yesterday only. हाँ. तो मैम मेरे को अब, और मेरे पास 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं था. हाँ ठीक है. So I don't know anything about the subject. So how will I cover it? पीयूष, आपने अपने कौन से ग्रुप में है पहले बताइए. मैम CH1. आपके GR ने क्या मुझे आपका ईमेल आईडी दिया है? हाँ जी मैम, वो कह रहे कि मैंने भेजा था, पर हाँ. मैम वो जो आप PDF है ना, अभी भी मेरे पास एक्सेस नहीं है उसका. मैंने फिर से अपनी अभी आईडी से कर भी दूंगी. रिक्वेस्ट भेज दी. Actually, yesterday also my internet was not working in the evening, so even I could not upload the lecture. Today I will do just after this class. And please go Okay. through my lectures, all my lectures. उसमें सारे lectures date wise दिए हुए हैं. आप अभी next lecture will be on Saturday. तब तक आप क्या करिए, जितना भी आपका syllabus है, you just go through all the videos. ठीक है? Okay. Video lecture. Ma'am, actually, If you have any question, I'll take that. I don't even know the basic of the subject. बेटा मैंने उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन करी है. Nobody here, आपकी क्लास में खूब सारे ऐसे सब हैं जिसने, see I have started from the basics. अगर आप सिलेबस देखोगे ना, आपका बेसिक से ही है कि क्या कंप्यूटर होता है, कैसे चलता है. You just go through the lectures and then अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, you can come to me through the GR. ठीक है, GR को कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि मैम से पूछना है कुछ. ठीक है. Okay, yes, मृदुल मक्कड़ and okay, so many questions. हाँ, Which फटाफट we बोलो should बेटा. refer? Then Ma'am, which book we should refer for this subject? it is given in the syllabus. You can go through the syllabus. Parth Katyal, yes. Please ask. Ma'am, even I have sent you a request regarding like your all lecture. Maybe you, see, I had asked the GRs, but actually I am entertaining only those requests that are coming from the GR. Okay, ma'am. So like एक बार I should contact your GR, ठीक है? Otherwise, if your name is there, I'll give you access. Manav and Saksham, yes. Good morning, ma'am. हाँ जी, good afternoon हो गया, बोलिए. हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम. मैं बायोटेक में था पहले, तो मैम मैंने वहाँ अंशु सर की क्लास लगाई है. ठीक है. मैम मैं आपके सारे लेक्चर देखूं या साथ ही नहीं, कंटिन्यू करूं? अगर आपको आता है तो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ऐसा कुछ नहीं, हम सब सेम ही टीच कर रहे हैं. ठीक है. यस सक्षम. मैम एक बार मैक्रो वाला एक्सप्लेन कर दो. अच्छा, और कोई? बस मैम वही. यू कैन लोअर योर हैंड एवरीबडी. ठीक है. मैक्रो कहाँ है? मैक्रो जो है हमारे पास में, ये क्या करता है, जहां जहां ये मैक्स लिखा हुआ आएगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 वैल्यू. ठीक है. अगर आपके पास में यहाँ मैक्स केस में मैक्स लिखा है, so here it is written as the processor will replace occurrence of max by constant value 2, therefore it is allowed. Oh, I'm sorry, it means these are allowed actually.
Oh, thank you for pointing out. So जो macros हैं, they also work in switch case. Thank you. ठीक है? Any other question? Jasmine, Tush, you can lower your hand now. Jasmine, bolo. Jasmine, you have to unmute yourself. Hello. Yes, Piyush. ठीक है. Okay. Thank you. I'm ending the class now. Thank you.